guys, let's come to this next topic of this capacitor. Okay, and this is the dielectric substances. You understand it properly because this theory is asking in examination also. That is a board theory. And if you consider any dielectric substance, then first of all, what is a dielectric substance? So dielectric substance, nothing, that is an insulator, or we call it non-conducting substance. If you consider any insulator or the non-conducting substance, we call it is a dielectrics. Okay, so when you use the dielectric in capacitor, अगर आपने डायरेक्ट कैपेसिटर के साथ रखा है, इक्वेशन तो हमने लिखा है लेकिन अभी हमें आप इसको डिटेल में स्टडीज करने वाला है, ठीक है. If you put the dielectric into substance, then Faraday was found at that time the capacitance of the capacitor is increasing. If you put any dielectric substance into capacitor, then capacitance of the capacitor is increases, and this was found by the Faraday. How it is increases we discuss later on. First we discuss the types of dielectric, then after we studied the different cases of this one. So let's discuss the types of dielectric. So we have two types of dielectric substance. The first one is a non-polar and second one is a polar substance. Non-polar substances and polar substances. Non-polar substances means what? Here this type of substance does not means there is no any dipole moment is present into this type of substance, and polar means what? Some dipole moment is present into the substance. Okay, और आप ऐसे सब्सटेंस लेते हो, फॉर एन एग्जाम्पल लाइक H2O2, ओके, दिस टाइप ऑफ सब्सटेंसेस. अगर ऐसे लेते हो तो फिर लाइक H2O, HCl, लाइक दिस. So these are the non-polar, so polar substances. These are the non-polar. Non-polar means what? This dipole moment is not present. Initially, this dipole moment is not present. Okay, here this no dipole moment is created. और आप फिर रखो नो डाइपोल मोमेंट. अगर आप पोलर सब्सटेंस की बात कर रहे हो तो फिर सम डाइपोल मोमेंट इज प्रेजेंट. ओके, एग्जांपल अगर H2 की बात कर रहे हो तो फिर पॉजिटिव नेगेटिव साथ में रहेगा H2. O2 की बात करें तो पॉजिटिव नेगेटिव साथ में रहेगा O2. सो दिस आर द नॉन पोलर. बट H2 या फिर HCl की बात कर रहे हो आप, इफ यू से H2O या फिर HCl, तो इसमें क्या होगा? दस H प्लस एंड Cl माइनस, कुछ ऐसा होगा. तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जो है आपको मिलेगी, एक साइड प्लस है एक साइड माइनस है, तो यहाँ पे आपको कुछ P ऐसा मिलेगा, ठीक है. अगर आप इसकी बात करो H2O की, तो उसमें भी कुछ ऐसी डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगी. इनिशियली दिस एवरी मोलेक्यूल हैविंग अ डाइपोल मोमेंट. यहाँ पे मोलेक्यूल डज नॉट हैविंग अ डाइपोल मोमेंट, तो आप ऐसा ऐड कर दो मोलेक्यूल हैव नो डाइपोल मोमेंट. molecules have no dipole moment. यहाँ पे ऐड कर दो molecule having some dipole moment. In this case you just add molecule having some dipole moment, and in the first case there is no. Okay, so what we write here? Molecule does not have a डाइपोल मोमेंट. ओके, एंड आप इसमें क्या लिख सकते हो? मोलेक्यूल्स हैव अ डाइपोल मोमेंट. तो ऐसे सब्सटेंस है उसको पोलर सब्सटेंस बोलते हैं, इससे सब्सटेंस है तो नॉन पोलर, ठीक है. सो इफ यू कंसिडर दिस टू सिचुएशन, देन व्हाट हैपन व्हेन यू अप्लाई सम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दिस बोथ द सब्सटेंसेस. So in this both the substances, if you apply some electric field, action electric field, then the net electric field is produced. Some net electric field is produced within the substance. Means net dipole moment is produced within the substance. Okay. So let's we draw this both the substance here. We draw the both the substance when E is 0. When E external is equal to what? 0. ओके, अगर ये एक्सटर्नल 0 है तो नॉन पोलर कैसे होंगे? नॉन पोलर सब्सटेंस में कैसा होगा? मान लो कि ये नॉन पोलर सब्सटेंस है,
Okay, so positive negative together, 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 like this. So here net dipole moment is equal to what? 0. If you consider the polar substances, then what? So here when the external field is not present, external field is not present, then dipole moment is present, like this, positive negative, positive negative, positive negative, positive negative, positive negative, but they are arranged in a random form. This all these dipole moments are arranged in a random form. So net dipole moment is becomes 0, because all those dipole moments are arranged in a randomly. So due to this random dipole moment, this net dipole moment in a polar substance is 0 as well as non-polar substance 0 without any external field. When any external field is 0, the dipole moment in the substance, in the both substances is 0. Here the molecule have a dipole moment, but net dipole moment is 0 because their arrangements are random. Here the net dipole moment is always 0 without electric field, okay, because they are arranged in this form. So the answer is net dipole moment you get is what? In the both case 0 when external field is 0. But if we apply the external field, when external field is present, when E external is present, then what happen in this both this type of substance? तो अगर आप फर्स्ट सब्सटेंस की बात कर रहे हो नॉन पोलर की, ओके, देन यू सपोज यू एक्सटर्नल जो भी आप एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करने वाले हो ओ इस डायरेक्शन में से मान के चलो दिस वन इज अ एक्सटर्नल फील्ड. If you apply any external field E in suppose right hand side, then positive charge and negative charge are separate due to this external field because there is some force is applied. So these charges are separate. ये चार्ज जो हो सेपरेट हो जाएंगे. अगर ये सेपरेट हुए तो क्या होगा? ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव. These charges are become separate and some dipole moment is produced. So here P net does not equal to 0. P net does not equal to, इसमें 0 नहीं होगा लेकिन इसमें 0 होगा. ठीक है, अगर आपने इसको अप्लाई किया तो फिर इसका ओरिएंटेशन चेंज होगा. Here the dipole moment is produced when after application of the external field dipole मोमेंट इज प्रोड्यूस. ओके, पहले तो इसमें था ही, इसमें डाइपोल मोमेंट तो है ही, लेकिन ड्यू टू दिस एक्सटर्नल फील्ड तो ओरिएंटेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज चेंज. अभी रैंडम ओरिएंटेशन है, अगर आपने अप्लाई किया तो फिर कोई स्पेसिफिक ओरिएंटेशन मिलेगा. So here due to this application of the external field, orientation of the all dipole moment is changed and some net dipole moment is produced. Okay, so in the second case if you apply the electric field like this, अगर आपने कुछ E apply किया, then in the polar substances again P net does not equal to 0 and they are arranged in some specific manner. Positive to negative, positive to negative, positive to negative, positive to negative, like this. सॉरी, आपने इस डायरेक्शन में अप्लाई किया ना, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव, मीन्स दे आर changing its orientation like this and some net dipole moment is produced in this one. So here orientation of a dipole moment is changed. Of dipole moment is चेंज. इसमें कुछ ऐसा होगा. तो मैंने यहाँ पे जो फिगर यहाँ पे इनिशियली 0 है, दोनों में कुछ पी नेट क्रिएट हुआ है, यहाँ पे पी नेट डज नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0. इफ दिस व्हाट इज दिस डायरेक्शन ऑफ दिस ओरिएंटेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस. Okay, because of heat energy they are not arranged parallel to external electric field. It depends on the temperature of a substance. Okay, if
temperature is equal to 0 Kelvin, then heat energy of the substance is 0. Heat energy of the substance is what? 0. Then हीट एनर्जी जीरो. अगर हीट एनर्जी जीरो है मतलब थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी मतलब थर्मल एनर्जी. ओके, तो देयर इज नॉट एनी थर्मल एनर्जी. थर्मल एनर्जी इज जीरो. इट्स मींस द डाइपोल मोमेंट इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड. So dipole moment P is parallel to external electric field E. Okay, and if temperature does not equal to 0 Kelvin, then thermal energy means heat energy does not 0. Then this dipole moment is arranged in some specific direction. तो फिर इसकी पोटेंशियल एनर्जी आपको लिखनी है माइनस पी डॉट ई से. तो इस केस में कुछ ऐसा आंसर, यहाँ पे पैरेलल होगी, यहाँ पे पैरेलल नहीं होगी. ठीक है, तो हम जो केस डिस्कस करने वाले उसमें हम लेने वाले कि T is equal to 0 Kelvin. We have to discuss only this case. Okay, in our textbook this case is given to us. We consider this all the dipole moments are parallel to the external electric field, means the substance is at T is equal to 0 Kelvin. But if it is not, then you just using this equation, thermal energy does not 0, so they are arranged in some specific manner but at some angle due to this heat, because thermal energy try to change its position from the equilibrium. Equilibrium is parallel to electric field. उसमें से अगर चेंज किया तो फिर कुछ एंगल पे उसकी ओरिएंटेशन ऐसे अरेंज हो जाएगी. ठीक है, कोई भी एंगल पर, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन. So this type of case we have to understand here. Then how much electric field is produced inside this one? What happen when you apply this electric field? So after application of electric field, polar and non-polar substance both are behaves in a similar manner, क्योंकि दोनों में dipole moment zero नहीं है. So after application of electric field, after external electric field is applied, both polar and non-polar substances behavior is सेम. आफ्टर एप्लीकेशन दोनों का बिहेवियर सेम हो जाएगा, मतलब वहां पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होने वाला है. देखो कैसे, यू जस्ट कंसीडर दिस टाइप ऑफ सिचुएशन, सपोज ये पोलर या फिर नॉन पोलर कोई भी है, उससे कोई फर्क अभी नहीं पड़ता. ठीक है, यू अप्लाई सम इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इन दिस डायरेक्शन, आपने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव अरेंज हो जाएगा. तो यहाँ पे मान लो कि इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फील्ड है. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ डाइपोल मोमेंट जो है कुछ ऐसे अरेंज हो जाएगी. यहाँ पे काफ़ी सारी है, मैं थोड़ी ड्रॉ कर रहा हूँ. ठीक है, एक्चुअली द नंबर ऑफ डाइपोल मोमेंट, नंबर ऑफ मोलेक्यूल इज इक्वल टू नंबर ऑफ डाइपोल मोमेंट. सो आई एम जस्ट ड्रॉइंग सम ऑफ देम. सो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ ऐसे अरेंज होगी. ठीक है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस. So all those dipole moments, suppose arrange in this form, you consider this dipole moments are arranged in this form where after application of electric field. So what happened here, the two regions are created. One region is created left hand side and one region is created right hand side. So this negative positive cancel to each other. This negative positive cancel to each other, but this negative is just forming here and this positive charge is forming here, and due to this internal electric field is also produced. We call it is induced electric field. Or due to this some net dipole moment is also created. We call it is a polarization. What we call it is polarization. मतलब after application of electric field, what happen finally in this substance, this type of situation is occurs. On the left hand side, suppose आपने इस डायरेक्शन में एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो लेफ्ट हैंड साइड कुछ नेगेटिव चार्ज मिला, देखो यहाँ पे. राइट हैंड साइड पॉजिटिव चार्ज मिला, तो फिर यहां से ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ इंटरनल फील्ड भी प्रोड्यूस होगा. दैट इज व्हाट इंटरनल, वी कॉल इट इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. इंड्यूस्ड
इलेक्ट्रिक, हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज अपोजिट टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, देखो this is the external electric field, and due to this application of this one, some dipole moment is produced, net dipole moment is produced here, and due to this net dipole moment some electric field is induced inside this one. Okay, so we call it is a polarization of any dielectric substance. Okay, what we call it is polarization of any dielectric substance. Polarization of any dielectric substance. Polarization is denoted by the P. Polarization is what? Denoted by P. इसकी definition देनी है तो फिर it's very simple. Polarization is given in this way. Polarization means what? Net dipole moment produced per unit volume called a polarization. Okay, so polarization का equation हो जाएगा P is equal to P net dipole moment अपॉन वॉल्यूम। ये भी वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि डाइपोल मोमेंट वेक्टर है तो पोलराइजेशन भी वेक्टर होगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन। एंड दिस वन इज अ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको अगर वैल्यू देनी है तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि E इज इक्वल टू, जो ए अपोजिट डायरेक्शन में देखो दोनों। ओके चलो वैल्यू हम नेक्स्ट में देने डोंट वरी, बट यहाँ पे इतना आपको नोट्स करना है। इफ यू कैन से द नॉन पोलर और पोलर सब्सटेंस, दिस सिचुएशन इज लाइक दिस। ओके, और यहाँ पे पी नेट्स की वैल्यू मतलब पोलराइजेशन जो है पी नेट अपॉन वॉल्यूम होता है। दिस वी इज रिप्रेजेंट्स अ वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम। इट्स डेफिनेशन होगा नेट डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट volume. And if you consider the 0 Kelvin temperature, then this type of arrangement is occurs in any polar or non-polar substance after application of electric field. So some net electric field is produced in opposite direction. This charges does not able to move actually because यहाँ पे जो molecules है उसके charge है, देखो यहाँ पे। So this charges are in a bound condition. So इसको हम bound charges भी बोलते हैं। Okay, so sometimes we also call it is a bound charges. This charge are called a bound charges because they are in a bound condition with this one. यहाँ पे देखो इसकी इफेक्ट कैंसिल हो रही है लेकिन चार्ज तो वहां पे ही, तो दिस नेगेटिव पॉजिटिव आर इन अ बाउंड कंडीशन। हियर व्हाई वी आर नॉट काउंटिंग दिस सेक्शन बिकॉज हियर पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। Okay, so we count only this negative and this positive. So here we call it is a bound charges. And यहाँ पे कुछ नेगेटिव बाउंड चार्ज क्रिएट हुआ माइनस क्यू बी लिख दो इसको, यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ प्लस क्यू बी से लिखते हैं सपोज। सो माइनस क्यू बी मीन्स नेगेटिव बाउंड चार्ज, प्लस क्यू बी इट्स अ पॉजिटिव बाउंड चार्ज। ओके, इसको हम पोलर मतलब ड्यू टू दिस नेगेटिव बाउंड चार्ज हियर सम डेंसिटी इज क्रिएटेड, चार्ज डेंसिटी। Here the surface is present. यहाँ पे चार्ज सरफेस पे देखो, पूरे वॉल्यूम के चार्ज हमने काउंट नहीं किया। So due to this external electric field only surface charge density is produced, not the volume charge density. यहाँ पे पूरे चार्ज यहाँ पे क्रिएट तो हुआ लेकिन उसकी इफेक्ट कैंसिल होगी, तो आपको जो चार्ज आपको मिलेगा वो कौन से कहाँ पे मिलेगा? ओनली ऑन द सरफेस, नॉट ऑन द वॉल्यूम। वॉल्यूम पे आपको चार्ज नहीं मिलेगा, यहाँ पे वो आपको सरफेस पे चार्ज मिलेगा। सो हियर वी डिफाइन द सरफेस चार्ज डेंसिटी, नॉट द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ओके, तो यहाँ पे कितनी चार्ज डेंसिटी? सपोज नेगेटिव चार्ज से यहाँ पे जो चार्ज है माइनस सिग्मा बी, या फिर उसको लिख सकते हो माइनस सिग्मा पी, पोलराइजेशन चार्ज डेंसिटी और बाउंड चार्ज डेंसिटी, दिस इज द नेम। सो सिग्मा बी इज व्हाट? बाउंड चार्ज डेंसिटी, और सिग्मा पी मीन्स व्हाट? पोलराइजेशन चार्ज डेंसिटी। दोनों सेम ही है, आप दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। तो फिर यहाँ पे प्लस चार्ज है तो यहाँ पे प्लस सिग्मा बी या फिर आप प्लस सिग्मा पी भी लिख सकते हो।
So minus sigma p or plus sigma p. So due to this bound charges, due to this negative and positive charges which is induced inside the dielectric substance, the net internal electric field produced in opposite direction of the external electric field. So that is the basics of the dielectric substance. Now what happen if we put this dielectric in a capacitor? We discuss in the next one. ओके तो पहले आप इतना नोट्स करो, उसके बाद हम देखते हैं कि अगर इसको ही हमने कैपेसिटर में रखा तो क्या होगा. इफ व्हाट हैपन इफ वी पुट दिस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इनटू द कैपेसिटर. Okay, so we discuss about this effect of dielectric on a capacitance, but first you note this. Okay, let's come to this next one, effect of dielectric on capacitance. But before we are discuss about this one, let's we discuss about the net electric field when the dielectric is this present. Suppose, so you consider, suppose I'm just drawing the same figure what I am doing this first one. Okay, so here this negative charge is present and here the positive. That's the when external field is present. Okay, so how much external field is supposed to be? E external is somewhere here like this. And due to this bound charges, here this minus sigma polarization, here suppose it is plus sigma polarization. Internal electric field is produced in opposite direction. So internal electric field is suppose in this one. So what is this net electric field inside the dielectric? Net electric field inside the dielectric. Okay, so E net is equal to E external minus E internal, क्योंकि यहाँ पे external field ऐसे है, this external field is present like this. तो फिर ऐसा कुछ होगा. So due to this dielectric, net electric field is decreases. See here what happened? Due to this dielectric, net electric field is decreases. Net electric field is decreases. How much it is decreases? So this net electric field is actually given by the simple equation. We are not go to the derivation. So you remember this net electric field is decreases. Okay, so this new electric field is given by this original electric field जितना भी है. सपोज आपने डायरेक्ट्रिक रखा, उससे पहले ही पहले कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड था, उसमें से रखने के बाद ई हो गया टोटल. सो ई नेट कितना हो जाएगा यहाँ पे? दिस ई नेट इज इक्वल टू ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड जितना था उसका डिवाइड बाय के हो जाएगा. तो के इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. के इज व्हाट एक्चुअली? डाइलेक्ट्रिक constant is capital K. Okay, and we know about this dielectric constant. So this much of electric field is becomes after this one. यहाँ पे अगर आपको कभी कभी induced electric field का इक्वेशन भी पूछते तो कैसे फाइंड करना? देखो यहाँ पे induced electric field. So induced electric field अगर आपको फाइंड करना है तो फिर E induced हो जाएगा E is equal to minus E applied into 1 minus 1 अपॉन के. इस इक्वेशन से आप इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन फाइंड कर सकते हो. जितना भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, ओके, अपोजिट है. यहाँ पे वेक्टर फॉर्म नेगेटिव साइन इज इंडिकेट्स इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. यहाँ पे अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल लिया है, कुछ भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इज डिक्रीजेस. इट्स रिड्यूस्ड बाय द फैक्टर ऑफ के. It is reduced by the factor of K, where K is equal to dielectric constant. Okay, तो यहाँ पे आप पोलराइजेशन कैसे दे सकते हो? पोलराइजेशन P is equal to net dipole moment upon volume. ऐसे दे सकते हो, net dipole moment upon volume. What is net dipole moment? Net dipole moment is actually given by Q bound. Net dipole moment is given by Q bound into D. ऐसे दे सकते हो. अगर उसके बीच का डिस्टेंस सपोज D मान लो, यहाँ पे जितना भी चार्ज प्रोड्यूस हो उसका Q बाउंड मान लो, तो एक्चुअली P इज इक्वल टू 2AQ. 2A इज अ डिस्टेंस एंड Q इज अ चार्ज. तो यहाँ पे आपने कितना चार्ज लिखा है? Q बाउंड. यहाँ पे कितना चार्ज Q, और यहाँ पे माइनस Q बाउंड.
ठीक है, उसके बीच के डिस्टेंस सपोज दी है, तो क्यू बाउंड, टोटल क्यू बाउंड अब इनटू डी अपॉन वॉल्यूम को आप क्या लिख सकते हो, वॉल्यूम होता है इसका, तो इसका मान लो कि एरिया ए है, एरिया इज इक्वल टू क्या है, ए है, तो आंसर क्या हो जाएगा, एरिया इनटू डी, डी कैंसल, तो पोलराइजेशन इज इक्वल टू क्यू बाउंड अपॉन एरिया, क्यू बाउंड अपॉन एरिया मीन्स व्हाट, दैट इज कॉल्ड अ चार्ज डेंसिटी। ओके, सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा बाउंड, और इसको हम सिग्मा पोलराइजेशन भी बोलते हैं, तो पोलराइजेशन नथिंग दैट इज अ चार्ज डेंसिटी ड्यू टू दिस पोलराइजेशन। सो यू मस्ट बी रिमेंबर दिस इक्वेशन, you must be remember this equation, and this polarization is given by the P net upon V, polarization is given by the P net upon V, and for linear dielectrics, means this type of dielectric whatever we consider here, यहाँ पे हमने जो डायलेक्ट्रिक कंसिडर किया उसको हम लीनियर डायलेक्ट्रिक बोलते हैं। सो इस केस में आपको पोलराइजेशन जो है वो इस इक्वेशन भी दे सकते हो, जाई इनटू ई, पोलराइजेशन इज इक्वल, एक्चुअली पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करोगे उतना पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, तो पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन निकाल तो वहाँ पे कॉन्स्टेंट रखना होगा, जाई इसको ससेप्टेबिलिटी ऑफ अ डायलेक्ट्रिक, इसको ये कॉन्स्टेंट है, और ये कॉन्स्टेंट को हम क्या बोलते हैं, ससेप्टेबिलिटी ऑफ अ डायलेक्ट्रिक, ससेप्टेबिलिटी ऑफ डायलेक्ट्रिक, इसको हम क्या बोलते हैं, ससेप्टेबिलिटी ऑफ अ डायलेक्ट्रिक। सो आप पूरी नोट जो है आपको एक एडिशनल नोट्स में इतना लिख देना है, ठीक है, उसके बाद हम इसकी इफेक्ट पे भी डिस्कशन करेंगे, बट ऐसा कुछ होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा होगा कि आपको ऐसे लिख सकते हो, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया है उसका के टाइम, मतलब उसका डिवाइड बाय के हो जाएगा। ओके, इसका डेरिवेशन भी है लेकिन हम इसका डेरिवेशन अभी नहीं करते। ओके, रिक्वायरमेंट आपको यही याद रखना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स ई बाई के, वेर ई इज अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, वेर ई इज व्हाट, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, यहाँ पे क्यू बाउंड का भी चार्ज, मतलब क्यू जितना बाउंड उसका भी इक्वेशन इसी से लिख सकते हैं, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस्ड चार्ज, ऐसा एक्चुअली हमने लिखा ही था लेकिन यहाँ पे फिर से लिख देते हैं, इंड्यूस्ड चार्ज, तो क्यू बाउंड इज इक्वल टू माइनस वॉट एवर दस, वहां पे चार्ज अगर आपने कुछ रखा है, सपोज आपने वहां पे कुछ चार्ज, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो मतलब ऐसा ही कुछ हुआ कि यहाँ पे एडिशनल, यहाँ पे कुछ प्लस क्यू चार्ज होगा, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज होगा, इसका मीनिंग कुछ ऐसा ही होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पे कोई चार्ज है, यहाँ पे कोई चार्ज, ऐसा मान के चलो, सपोज आपने यहाँ पे कितना चार्ज रखा है, प्लस क्यू, तो इंड्यूस चार्ज तो अपोजिट ही रहेगा, तो माइनस क्यू इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के, एग्जैक्टली सेम इक्वेशन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने अगर यहाँ पे ऐसा माना था कि एक्सटर्नल फील्ड नहीं, लेकिन इस साइड कुछ पॉजिटिव चार्ज रखा, इस साइड कुछ नेगेटिव चार्ज रखा, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोड्यूस होगा ना, पॉजिटिव नेगेटिव से। तो आप क्यू बाउंड का इक्वेशन इससे लिख सकते हो, और हमने ऐसा डिस्कस किया हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो इंड्यूस चार्ज इज गिवन बाय, एक्चुअली मैंने इक्वेशन ये लिखा था कि इंड्यूस इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के, ऐसा मैंने इक्वेशन ऑलरेडी लिखा था जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टडी कर रहे थे, ठीक है। तो ये इक्वेशन भी आप लिख सकते हो, बाउंड यहाँ पे इंड्यूस्ड ही है, बाउंड चार्ज क्या है, इंड्यूस चार्ज ही है जो डायलेक्ट्रिक में ऐसे इंड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे इस पूरे टॉपिक्स को, मतलब इसे ये पूरे टॉपिक्स में इतनी नोट्स जो है एडिशनल बनाए, उसके बाद हम इफेक्ट पे चलते हैं, इफेक्ट ऑफ डायलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटर, ठीक है। बट इतना आपको आपकी बुक्स में नोट्स कर लो, उसके बाद चलते हैं क्योंकि इतना ज़रूरी है, हम इसका यूज़ भी करने वाले इक्वेशन डेरिवेशन में, ठीक है। चलो नोट करो। Okay, let's come to this next one, effect of dielectric on capacitors, and that is our important topic we have to discuss here. When dielectric is not placed inside this one, अगर यहाँ पे कोई dielectric place नहीं है, ऐसा मान के चलो, okay, so what happen, thus capacitor having some charge plus q and minus q like this, तो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस होगा प्लस q से माइनस q, yes or no, so here some charge electric field is produced, consider this electric field is what, E naught, so E naught का इक्वेशन आप कैसे लिखते हो, so E naught इलेक्ट्रिक फील्ड
E naught is equal to what? Sigma upon epsilon naught. That's very well known equation. यहाँ पे सिग्मा का आंसर क्या होगा? Q upon F. सिग्मा इज अ चार्ज डेंसिटी. सिग्मा इज इक्वल टू व्हाट? चार्ज डेंसिटी. इसको आप फ्री चार्ज डेंसिटी भी बोल सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट केस में बाउंड चार्ज भी आता है, तो इसको आप फ्री चार्ज डेंसिटी भी बोल सकते हो, सिर्फ चार्ज डेंसिटी बोल तो कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट होगा? हाउ मच पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटिंग हियर? सो सपोज यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट है, so मान लो. सो व्हाट इज दिस पोटेंशियल डिफरेंस हियर? सो पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट इज इक्वल टू नथिंग E नॉट इनटू D. ऐसा ही कुछ होगा, मतलब कि डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट इज कंसिडर्ड D एंड एरिया ऑफ द प्लेट इज सपोज टू बी A. आप ऐसा मान के चलो, यहाँ पे डिस्टेंस जो है दोनों प्लेट के बीच का कितना लेना है? D लेना है, और इसको एरिया जो है प्लेट का वो कितना लिया हमने, ऐसा है. तो इस इक्वेशन का आंसर ऐसा होगा. तो फिर C का आंसर इस केस में क्या आता है? C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D. ऐसा होगा कैपेसिटेंस. तो आप इसको C0 ले लो, कैपेसिटेंस. सो कैपेसिटेंस C0 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ऐसा कुछ हो जाएगा. तो इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, सो दिस इज द थ्योरी व्हेन वी आर नॉट प्लेस एनी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इनसाइड दिस कैपेसिटर. So at that time we use this type of equation. But if you place this dielectric like this, consider the dielectric having a dielectric constant K. इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? K. So due to this positive and negative charge, here some already electric field is present. Which electric field? E0. See here already E0. So right now E0 is external field for us. This E0 is what? External field for this dielectric substance in right hand side. So due to this external field on this surface of a dielectric, some negative charge is produced, means opposite charge is produced. So यहाँ पे कौन सा charge produce होगा? What charge is produced here? That's a negative. So this is the bound charge. So due to this here minus sigma p charge density, and here which charge is induced? Positive. It means here प्लस सिग्मा पे. यहाँ पे एक चार्ज डेंसिटी ऑलरेडी, यहाँ पे एक चार्ज डेंसिटी थी, प्लस क्यू है, तो वहाँ पे प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी, माइनस क्यू है, माइनस सिग्मा चार्ज डेंसिटी. यहाँ पे ऐसे एक चार्ज डेंसिटी तो थी, ठीक है, और एक और यहाँ पे प्रोड्यूस हुई बाउंड चार्ज डेंसिटी, पोलराइजेशन चार्ज डेंसिटी, सिग्मा पी एंड माइनस सिग्मा पी, ऐसा कुछ. तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज. तो फिर यहाँ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो कि E है, इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें अभी कितना प्रोड्यूस हुआ, मतलब इस यहाँ पे कुछ अपोजिट डायरेक्शन में से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. ठीक है, तो वो आप मानो कि E इंटरनल है. तो फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आपने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को E लिया, सपोज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट? E. देन E इज इक्वल टू व्हाट? दिस एक्सटर्नल फील्ड इज 0 एंड अपोजिट है तो माइनस E इंटरनल, ऐसा कुछ होगा. तो आंसर क्या आएगा E का? सो E इज इक्वल टू E0 का आंसर क्या है? E0 में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो माइनस इंटरनल की सिग्मा चार्ज डेंसिटी कितनी लेनी है? सिग्मा पी, तो ऐसा हो जाएगा सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट. थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, एंड E0 इज ओरिजिनल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो आंसर क्या हुआ? दिस इज इक्वल टू सिग्मा minus sigma p upon epsilon naught. That is comes to equation number 2. Now what is the potential difference in this case? So potential difference अगर आपको काम करना है तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E इंटू डी. जैसे यहाँ पे V0 इज इक्वल टू E0 इंटू हुआ, तो इसमें न्यू पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर आपने मान लिया कि पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो V का आंसर कैसे लिख सकते हो? तो E का इक्वेशन वहां पे रख दो, तो इसका आंसर हो जाएगा V इज इक्वल टू, E क्या है? सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू डी, ऐसा ही कुछ होगा. इसको आप ले लो इक्वेशन नंबर 3. नाउ यू कैन डू समथिंग, सो यू फाइंड सिग्मा माइनस सिग्मा पी. सो फॉर linear dielectric, what we write? Electric field is directly proportional to sigma.
For linear dielectric field is directly proportional to sigma, and thus electric field is decreased by k like this, E0 by k as we know. तो यहाँ पे अगर सिग्मा की ऐसे बात कर रहे हो तो फिर जितनी भी चार्ज डेंसिटी है सिग्मा माइनस सिग्मा पी, वो किसके प्रोपोर्शनल होगी? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा हो जाएगी। तो अगर आपने उस साइन को निकाल दिया तो वहां पे आपको रखना होगा सिग्मा माइनस सिग्मा पी, और ये डिक्रीज हो रही है तो फिर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन के, आप ऐसा लिख सकते हो, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड के मतलब डिवाइड बाय के होता है, तो सिग्मा चार्ज न्यू चार्ज डेंसिटी भी जितनी आती है वो भी डिवाइड बाय के हो जाएगी, वो भी क्या हो जाएगी? डिवाइड बाय के, क्योंकि ये भी डिवाइड बाय के होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज डेंसिटी बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सो फॉर लीनियर डायरेक्टली आप ऐसा लिख सकते हो। इसकी वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 3 में रख दो। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 व्हाट यू गेट? v इज इक्वल टू, यहां पे रख दो सिग्मा अपॉन के इंटू डी, ऐसे ही रखो। व्हाट इज सिग्मा एक्चुअली? फ्रॉम दिस सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, सिग्मा इज इक्वल टू व्हाट? क्यू अपॉन ए। तो वहां पे रख दो आप, सॉरी यहाँ पे एक एप्सिलॉन नॉट तो बाकी है, इसकी जगह पे आपको याद है यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, तो के इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा की जगह रखो क्यू अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू डी। ओके, तो ऐसा कुछ इक्वेशन है, इसमें से क्यू बाई वी को फाइंड करो। सो क्यू अपॉन वी, क्योंकि कैपेसिटेंस ही होता है ना, तो इसमें से कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? कैपेसिटेंस अगर आपको फाइंड करना है तो सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, तो क्यू यहाँ पे रखो, वी को यहाँ पे, मतलब ये न्यूमरेटर में आएगा, ये डिनोमिनेटर में आएगा, तो आंसर ये न्यूमरेटर में। सो के एप्सिलॉन नॉट ए एंड ये डिनोमिनेटर में डी आ गया, डी। तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी को आप क्या बोलते हैं? सी, है ना। तो यहाँ पे रख दो आप सी 0, तो सी का आंसर हो जाएगा सी इज इक्वल टू के से इंटू सी 0, मतलब कि द कैपेसिटेंस बिकम्स के टाइम्स आफ्टर प्लेसिंग अ डाइलेक्ट्रिक। Before placing this dielectric, capacitance is supposed to be C0. Then after placing this dielectric, capacitance becomes C is equal to KC0. Means capacitance is increased by K. Capacitance is increased by K. So in this case, we have to write the answer after placing the dielectric, capacitance of capacitor is increased by K, where K is the dielectric constant of the dielectric substance। ठीक है, तो ऐसा है कि आपका कैपेसिटेंस जो है वो K टाइम्स हो जाएगा, मतलब without dielectric you just write the answer in this way, with this way, and with the dielectric you write the answer in this way। ओके, मतलब यहाँ पे ऐसे जगह नहीं रखनी, ठीक है, वैसे पूरा डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस से फिल किया हुआ है, जस्ट होल दस फुल डायलेक्ट्रिक इज प्लेस बिटवीन दिस टू, सो यू जस्ट अंडरस्टैंड इन दिस वे। ओके, चलो पूरी थ्योरी आपकी बुक्स में अच्छी तरह से नोट्स कर लो, और एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ठीक है, तो याद भी रखनी है। Okay guys, let's come to this one additional topic, and that is electric displacement, and V generally denoted by D. Okay, so you just write this topic in a additional note. Now what is this equation? What only we have to derive? Thus polarization P is given by the xi into, and P is also given as a sigma P into n unit vector. P is a polarization is a vector quantity, so I am just giving the direction. The sigma P does not have any direction, so you just write one unit vector with this one. Suppose n is the direction of this. Okay, मतलब कि P की डायरेक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि P is equal to P into n. Thus magnitude of polarization is given as a sigma P. तो दोनों ही ऐसे कुछ सेम हुए. Now electric field is what? E is equal to sigma minus sigma P upon epsilon naught, as we know, and where sigma minus sigma P is what? Sigma upon K. So if you consider this both the situation, so what is this E actually? Electric field का अगर वेक्टर फॉर्म में आप लिख सकते हो तो कैसे लिखना चाहिए? So वेक्टर फॉर्म अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का लिखना चाहते हो, पहले इसका इक्वेशन थोड़ा डिराइव करो. So E is equal to सिग्मा माइनस एप्सिलॉन नॉट को यहाँ पे ले लो, तो एप्सिलॉन नॉट इनटू ई. Why we write this is in vector form? Because electric field is a vector quantity. Okay, so sigma minus sigma p is what? Sigma p is a sigma
सिग्मा पी की पी लिख सकते हो आप, सो पी डॉट यूनिट वेक्टर ऐसा लिख सकते हो यहाँ पे। ओके, सिग्मा पी की मैग्नीट्यूड सिग्मा पी है और दस पी इज रिटन एज अ पी डॉट एन, सो हियर इट्स राइट लाइक दिस पी डॉट एन। मतलब यहाँ पे मैंने आप ऐसा लिख सकते हो कि सिग्मा पी इज इक्वल टू पी डॉट एन, ठीक है। और डिवाइड बाय सॉरी एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे ले लिया, तो नेगेटिव साइन को यहाँ पॉजिटिव ले लो, सो एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी डॉट एन इज इक्वल टू व्हाट सिग्मा। सो अगर आप ई की भी डायरेक्शन देना चाहते हो तो फिर आप लिख सकते हो एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी डॉट एन is equal to sigma, where sigma is a free charge density. What is this sigma? Free charge density. What is the meaning of this? Charge density without charge density without dielectric substance. मतलब आपने जब सब्सटेंस नहीं रखा था तब की चार्ज ऐसे वैसे, तो मतलब ये पूरी कोई वेक्टर क्वांटिटी आपके पास है। देखो यहाँ पे दिस इज अ वन वेक्टर क्वांटिटी, सो दिस वेक्टर क्वांटिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। इस वेक्टर क्वांटिटी आप क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। सो एक्चुअली डी इज रिटन, सॉरी दिस इक्वेशन इज ऑल्सो रिटन एज अ डी डॉट एन इज इक्वल टू सिग्मा। This is the equation where D is called a electric displacement, और इसका equation D is a vector quantity, so D is equal to epsilon naught E plus P. So this all electric field, polarization and the electric displacement have the same direction. So this all have a same direction. D, E and P all have a सेम डायरेक्शन, ठीक है। उसकी डायरेक्शन जो है सेम रहेगी, डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन डी प्लस पी। तो आपका इक्वेशन याद रखना है। थोड़ी और एडिशनल इसमें थोड़ी डिटेल लिखते हैं, चलो। सो इफ यू फाइंड द रेशियो ऑफ द डी एंड ई, मैग्नीट्यूड ऑफ डी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ई, ओके, यू जस्ट टेक दिस रेशियो, यू गेट द न्यू क्वांटिटी। आपको इक्वेशन भी याद रखना है एक एग्जांपल्स के लिए। तो डी का मैग्नीट्यूड कितना मिला आपको? सिग्मा। ए डॉट मल्टीप्लाई, ये तो यूनिट वेक्टर है तो इसका दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा। तो डी का मैग्नीट्यूड मिला आपको सिग्मा, तो सिग्मा हो गया अपॉन ई का मैग्नीट्यूड तो आपने यहाँ पे लिखा है, तो सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन। दिस एप्सिलॉन नॉट इज कम्स इन द न्यूमरेटर, सो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस सिग्मा पी इंटू एप्सिलॉन। लेकिन यहाँ पे देखो सिग्मा माइनस सिग्मा पी इज इक्वल टू सिग्मा बाई के है, ओके। सो इसमें से फाइंड करो सिग्मा, सो दिस इज रिटन एज अ के, तो यहाँ पे के आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो मतलब ये पूरा आंसर के की जगह पे आएगा। सो एक्चुअली डी बाई ई इज इक्वल टू के इंटू एप्सिलॉन नॉट। हियर वी डिफाइन द डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के। तो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन इन द टर्म्स ऑफ के आप ऐसे याद रख सकते हो। तो डी अपॉन ई इज इक्वल टू के इंटू एप्सिलॉन। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन इफ यू कन्वर्ट दिस रिलेशन in terms of electric susceptibility, then use the P। तो यहां से आप पोलराइजेशन का इक्वेशन क्या लिख सकते हो? What you have to write the polarization? So P is equal to D minus epsilon naught. Yes or no from this one? See, P is equal to D minus epsilon naught into E। तो यहाँ पे D का इक्वेशन ये रख दो, D का इक्वेशन ये रखो, तो आप यूनिट वेक्टर जो है कोई n लेना, ठीक है, यूनिट वेक्टर कोई भी n लेना। तो D का आंसर क्या आएगा इसमें से? K इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई माइनस एप्सिलॉन नॉट इंटू ई। इसमें से एप्सिलॉन नॉट ई को कैंसिल कॉमन आउट निकाल लो, तो K माइनस 1 into epsilon naught into E, that's the equation of polarization in terms of K. Now you compare this equation, P is equal to psi and P is equal to K minus 1 into epsilon into E। दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो। So by comparison what you get? बाय कंपेयर आप दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हो तो फिर इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी हो जाएगी K minus 1 into epsilon। दैट्स अ वेरी वेल नोन इक्वेशन, यू मस्ट बी रिमेंबर। ओके, आपको इक्वेशन याद रखना है। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी इज गिवन बाय द K minus 1 into epsilon naught फॉर द एनी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस।
तो ये मतलब आपको इस इक्वेशन में काफ़ी सारे इक्वेशन मिले, सभी इक्वेशन याद रखने हैं, ठीक है। एडिशनल थ्योरी, लेकिन JEE इसके एग्जाम्पल में भी आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। तो that's the one equation of the electric relation between the electric susceptibility and the dielectric substance. This is what relation between electric susceptibility and dielectric कांस्टेंट, इन दोनों का रिलेशन है और आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो पूरा टॉपिक से आपकी बुक्स में अच्छी तरह से नोट्स कर लो। Okay guys, let's come to this next case. Actually we discuss about this one, effect of dielectric on capacitance, but here we have two cases. Okay, so let's we discuss the effect of dielectric in short when this different cases is given to us. So let's we start with the first case. So case number 1, so let's consider this case number 1. If you consider the battery is connected here, battery is connected and the effect of dielectric. Okay, what is this meaning of this? You can suppose it is capacitor. Initially this capacitor is like this and battery is connected to it, and battery is what supposed to be V. This type of situation is given to us. Now if you consider this initial situation is this one, then how much charge on this plate? Suppose consider plus Q. Here this charge is what supposed to be minus Q. This distance between two plates is considered to be D, and the area of the plate is considered to be A, suppose. Then what is this initial condition? So C0 is equal to what? Epsilon naught A upon D. What is this Q? So Q is given as a C0 into V. This is the initial situation. C, actually what is this? Let's we consider the only simple case C. We are not count the C0, okay? So it's given as a CV. Okay, so what is this CV? This is the initial situation. If you consider the U, then what is the U? So U is equal to, you consider 2 Q square by 2 C or 1/2 CV square. This is the initial situation if you consider this one. If you consider the electric field, then electric field is a sigma upon epsilon naught. This all are the different parameter. Actually we have to discuss here different parameter when the dielectric is inserted into the capacitor, when the battery is connected. Okay, different parameter of a capacitor in this case. Now you insert some dielectric into this into the capacitor. What happens? See, I am just drawing the same figure again. This is without. Okay, now with dielectric, let's discuss with dielectric. With dielectric, what happened with dielectric? Let's we draw the figure again, same figure again we have to draw here. So this one is a capacitor and it is battery remains connected here. See, so battery remains connected, battery does not disconnect from here. So battery voltage is what initially supposed to be V. Okay, now this distance and everything is again same. This distance between the two places is what? Same, D. Here the area does not change. Only here what is this change? Here we just make a one change and we have to place a one dielectric between these two plates like this. So here we put a dielectric like this. In this dielectric constant is supposed to be K. So as we know, as just Faraday suggested, if we place in any condition, if we place any dielectric into the capacitor, then its capacitance becomes K times, as we know. Okay, so here this first parameter, you write this first parameter, this capacitance, if you write, then what? इसका capacitance C dash मान के चलते हैं. Okay, new capacitance. So C dash is equal to always KC. Always KC. Now you just connect this battery. You does not disconnect this battery. So for whatever this condition is considered, this point is A and this point is B. What is the potential difference between A and B? Always V, because battery is connected. So in this case, second parameter, potential different V dash is equal to V. It is never change. See, you must be understand, V dash never change. Okay, why? Because you connected the battery. If you disconnect this battery, then the case is different. But if you just consider this situation, then V dash does not change. V dash is equal to what? V, when battery is connected. So in this parameter of this capacitor, when the dielectric place inside, this does not change. The third parameter, electric field. So electric field is E dash. E dash is equal to what? V dash into, sorry, V dash upon D. V dash upon
डी, ऐसा कुछ होगा. So V dash upon D, it means V upon D means E dash is equal to E, ऐसा हो जाएगा, क्योंकि E का इक्वेशन क्या होता है, V upon D, यही होता है ना ओरिजिनल. तो E dash और E भी इसमें सेम रहेगा. So electric field in this case does not change. In this case electric field does not change. Okay. So fourth parameter पे चलते, charge. So if you consider, suppose the charge on this surface is Q dash, on this surface is minus Q dash, then Q dash is equal to actually what, CV dash. Q dash is equal to CV, but C is a C dash V dash, but C dash is a KC. So answer क्या होगा, K into C into V dash is equal to V रख दो, तो Q is equal to CV है ओरिजिनल, तो फिर चार्ज कितना हो जाएगा, Q dash is equal to K into Q, ऐसा हो जाएगा. So this is the next parameter 4. The charges becomes so KQ when the battery remains connected. मतलब कि when you just insert this dielectric into the capacitor, some additional charge is flow through here. Some additional charge is flow through the battery and it comes here. So the charge is increases by the K. Here charge is increased by the value of K. Let's come to this next one, potential energy. 5. Potential energy. So what is potential energy here? So U is equal to 1/2 C dash V dash square, ऐसा कुछ होगा, C dash V dash square, put the value. So 1/2 C dash is equal to KC into V dash is equal to V है, तो इस V square. So यहाँ पे 1/2 CV square क्या है, 1/2 CV square U है, तो फिर U dash, आप U dash ले लो, U dash का आंसर क्या होगा, K into U, मतलब कि this U becomes K times. Thus potential energy increased by K after insertion of a dielectric. After insertion of dielectric, this energy becomes K times. Okay, if you consider this energy density, 6, energy density. So what is this equation of energy density? As we know, so rho E is equal to 1/2 epsilon naught E square. ऐसा इक्वेशन है एनर्जी डेंसिटी का, रो ई इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर. सो ई तो दोनों केस में सेम होगा, तो मतलब एनर्जी भी सेम होगी, देयर इज नो चेंज. यहाँ पे एनर्जी भी कैसी हो जाएगी, सेम हो जाएगी. लेकिन यहाँ पे 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आपने लिया, यहाँ पे सपोज यू जस्ट कंसिडर जस्ट 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर. तो इसका आंसर एक्चुअली होता है, एनर्जी का ओरिजिनल इक्वेशन क्या होता है, देखो यहाँ पे एनर्जी का ओरिजिनल इक्वेशन होता है रो ई consider rho E is equal to energy upon volume, energy upon volume. ओके, तो अगर इस इक्वेशन से आप चलते हो तो आंसर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी का. Okay, now comes to this next one, that is a energy density. So rho E is equal to energy upon volume. Thus rho E is equal to what, energy upon, so rho E dash is equal to U dash upon volume. Volume does not change. यहाँ पे U की जगह पे रख दो K into U upon volume, तो rho E dash इसमें क्या हो जाएगा, K into U upon V. This is the energy density after placing this after insertion of a dielectric. Okay, so this is the basic theory of the how to change the parameter of a capacitor when thus any dielectric substance is inserted into the capacitor. So let's rewrite this case in a shorter. So this is the full theory how it is right. Okay, so if we just write the simple theory, so when battery is connected, you must be understand it properly. When battery is connected, when battery is connected, so and after insertion of a plate, आप ऐसा मान के चलो कि after insertion of dielectric सब्सटेंस, अगर आपको कुछ फाइंड करना तो सी डैश, डिफरेंट वैल्यू यहाँ पे लिखता हूँ, सी डैश मतलब कैपेसिटेंस, वी डैश मतलब पोटेंशियल,
दस क्यू डैश मतलब चार्ज, ई डैश मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, suppose u dash means energy, then how you write this answer? This answer becomes kc, this answer becomes v, this answer becomes kq, this answer becomes e and this answer becomes ku. मतलब इसमें मैंने शॉर्ट में सभी डेटा लिख दिया जो भी हमने डिराइव किया था. So here you write this answer in this way. Okay, so you get the final answer. You must be remember. तो यहाँ पे अगर वर्क डन का फॉर्मूला आपको चाहिए तो वर्क डन का आंसर क्या होता है? W इज इक्वल टू डेल्टा यू इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल. मतलब कि यू डैश है, यू फाइनल है, यू डैश यहाँ पे क्या है? यू फाइनल, और यू यहाँ पे क्या है? यू इनिशियल. तो यहाँ पे रखो के यू माइनस यू, ऐसा कुछ हो जाएगा. तो फिर के माइनस वन इंटू यू, दिस इज द आंसर ऑफ द वर्क डन. ओके, सपोज आपको वर्क डन इस केस में चाहिए तो वर्क डन आप इस फॉर्मूला से आप फाइंड कर सकते हो. ठीक है, तो पूरा टॉपिक्स जो है दिस वन, you just note this one, case 1 battery is connected and this is in a short format. Here it is in a short format. Okay, now comes to the case 2 when battery is disconnected. What happened? You must be understand it, the effect of different parameter, effect on different parameter of capacitor when you consider this battery is disconnected. फर्स्ट केस में बैटरी को कनेक्ट रखा था, इस केस में बैटरी को कैसा किया? डिसकनेक्ट. देन व्हाट हैपन आफ्टर इंसर्शन? सी, सो हियर आई एम जस्ट ड्राइंग दिस फिगर अगेन. सो दैट इज वन कैपेसिटर. नाउ बैटरी इज डिसकनेक्ट. सो यहाँ पे सपोज मान लो इनिशियली प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है एंड डायलेक्ट्रिक डज नॉट इंसर्ट हियर. ओके, सो डिस्टेंस बिटवीन दिस टू प्लेस कंसिडर डी. यहाँ पे एरिया मान लो ए है, तो फिर सी का आंसर क्या होगा? ओरिजिनली व्हेन द डायलेक्ट्रिक इज नॉट प्लेस्ड. सो C इज इक्वल टू क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट एट अपॉन डी. V मान लो कि पोटेंशियल डिफरेंस है, तो फिर Q क्या हो जाएगा इस केस में? Q इज इक्वल टू हो जाएगा CV. व्हाट इज दस Q? Q इज इक्वल टू CV. अगर आपको U चाहिए तो क्या होगा? Q स्क्वायर बाई 2C भी रख सकते हो, 1/2 CV स्क्वायर भी रख सकते हो, जो भी आपको रखना है. ठीक है, सो U इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल हो जाएगा V अपॉन डी या फिर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन. दिस इज द बेसिक्स थिंग when the dielectric does not place and the battery is disconnected. Okay, now battery is disconnect from here. मतलब आपने यहाँ पे पहले तो कनेक्ट रखा था, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? V, यहाँ पे कितना? 0. मतलब वहाँ पे ऐसे बैटरी कनेक्ट है. अभी आपने बैटरी को डिस्कनेक्ट किया, तो मैंने चलो यहाँ से बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया और कैपेसिटर के अंदर मैं कोई डायलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहा हूँ. सो लेट्स कंसिडर द केस, दिस केस आफ्टर insertion of dielectric. What happened here? See, you understand it properly. After insertion of dielectric, so अगर आपने कैपेसिटर तो ऐसे ही रखा, यहाँ पे कैपेसिटर है, ये दोनों टर्मिनल है जो डिसकनेक्टेड है. यहाँ पे पहले कितना चार्ज है? प्लस क्यू. यहाँ पे पहले कितना चार्ज है? माइनस क्यू. नाउ यू प्लेस अ डायलेक्ट्रिक बिटवीन दिस टू. तो यहाँ पे आपने रख दिया डायलेक्ट्रिक ऐसे. So you just place a dielectric here. Is dielectric constant ले लो K. So what happens? See here, just charge whatever. Now there is no any possibility any different charges comes on the plate. In the first place battery is connected. There is a possibility the charge is coming to the plate. यहाँ पे तो चार्ज कोई आएगा ही नहीं. तो पहले तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? फर्स्ट वन कैपेसिटेंस हो जाएगा C dash is equal to KC. It is a very well known thing. Even in any case you just insert dielectric into the capacitor, then capacitance becomes K time. That is the Faraday's experiment. Okay, so that's one. Now second one is what? Charge. So यहाँ पे चार्ज कहाँ से फ्लो ही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कोई नया चार्ज आने वाला, क्योंकि बैटरी है तो 10 चार्ज इज कमिंग, बट बैटरी इज दिस मीन्स देयर इज नो एनी चेंज इन चार्ज. सो Q dash is always Q in this case. Okay, if you consider the potential, if you consider potential then V dash is equal to Q dash upon C dash. ऐसा कुछ होगा, मतलब कि Q upon KC. सो Q by C क्या होता है? V होता है. तो यहाँ पे पोटेंशियल का आंसर होता है V dash is equal to V by K. V dash is equal to क्या हो जाएगा? V by K. नेक्स्ट पे चलते हैं. फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E dash is equal to V dash upon D. सो V dash is equal to what? V by K. So V by D into 1 upon K. So V by D means electric field. So E dash का आंसर होगा E dash is equal to E by K. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड K टाइम्स डिक्रीज होगा. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं 5.
पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी यू डैश इज इक्वल टू, उसका आंसर क्यू स्क्वायर बाय 2c भी रख सकते हो, ओके, और 1/2 cv स्क्वायर भी रख सकते हो. लेट्स राइट डाउन क्यू डैश स्क्वायर अपॉन 2c डैश. सो क्यू डैश एंड क्यू सेम है, तो फिर क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू के सी, ओके. तो क्यू स्क्वायर बाय 2c क्या होता है, u होता है, तो आंसर हो जाएगा u डैश इज इक्वल टू u बाई के. नेक्स्ट पे चलते हैं, एनर्जी डेंसिटी. सो रो ई इज इक्वल टू, फिर से u डैश अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम तो ऐसे ही रहेगा लेकिन u डैश हुआ u बाई के, सो दैट इज u बाई v इंटू 1 अपॉन के. सो दिस इज द चेंज इन एनर्जी डेंसिटी of this capacitor when the dielectric substance is inserted into the capacitor when battery does not connected. So here these are the different parameter when the battery does not connected. So यहाँ पे आप इस equation का use कर सकते हो. When the battery does not connected, you just use this equation, you get the final answer. Okay, let's we write this whole the terms in short. So when battery is disconnected, we write this battery disconnected. इसमें हम शॉर्ट में लिखते हैं आफ्टर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस. इसमें आपको शॉर्ट में लिखना है, तो फिर सी डैश क्या हो जाएगा, के सी. क्यू डैश क्या हो जाएगा, नो चेंज, तो क्यू ही रहेगा, ओके. क्यू तो आ गया. वी डैश लिखते हैं यहाँ पे, सो वी डैश बिकम्स v by k, e dash becomes e by k, u dash becomes u by k. So these are the different cases. Okay, if you want to find the work done here in this case, तो आपको इसमें अगर work done चाहिए तो W is equal to u final minus initial. u final कितना हुआ, u upon k माइनस u होगा, तो इसका आंसर आता है फ्रॉम दिस वन. ओके, इसका आंसर नेगेटिव रहेगा, सो 1 upon k 1 upon k माइनस 1. ओके, इसका आंसर नेगेटिव रहेगा, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा जो वर्क डन है वो चेंज होगा. ठीक है, इस तरह से. सो हियर वी जस्ट राइट डाउन दिस डिफरेंट केसेस इन दिस वे एंड यू मस्ट बी रिमेंबर दिस होल दिस केस. सो पहले एक पूरा केस है बैटरी डिस्कनेक्ट, उसका एक पहले थियोटिकल सेक्शन आप नोट कर लो, ओके, और उसके बाद ये भी नोट कर लो एंड यू जस्ट राइट डाउन दिस होल थियोरी इन एडिशनल नोट. All of you guys, you just write down this whole theory that battery is disconnected and the changes in different parameter of capacitor, and battery is connected and the different parameters change. Okay, so आप ये नोट्स कर लो, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इसके बेस पे जो भी एग्जाम्पल है वो डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो ऑल ऑफ यू गाइस नोट दिस. इन द नेक्स्ट सेशन वी डिस्कस अबाउट द डिफरेंट एग्जाम्पल विच इज बेस्ड ऑन इफेक्ट ऑफ कैपेसिटी, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटर. ओके, चलो नोट्स कर लो.